Good morning, students. How you are all? I hope you all are fine at your home. In our previous lesson, students, we started a chapter, The Dragon Rock, and we have done the first part of the chapter. Today we will do second part of this chapter. In our previous lesson, we read that there was a rock which looked like a dragon. There was a rock which looked like a dragon who was sleeping, and the children used to play. They used to decline all over it, poking sticks at it and hanging wet boots on its ear, but the dragon did not mind. Now they had a hope that the dragon would help them, and one day they sing a song also. In times of trouble, the dragon will wake and save the village by making a lake. They had hope. Now afterwards, then what happened we will start. First, you know what are dragons? Who are dragons? Okay. The dragons is an animal similar to a huge lizard or snake that appears in stories. They are having scaly skin, four legs with long claws, a long tail, horns, spikes, and bat-like wings. Komodo dragon of Indonesia of 10 feet is the largest living dragon exists in the earth. Okay. We will start second part of the chapter. The severe heat made them dizzy, and finally they all fell in a sprawling heap at the bottom of the mount. They looked up at the rock. Nothing happened. ये पैराग्राफ हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको जोड़ने के लिए इसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं कि एकदम जो भयानक सी गर्मी पड़ रही थी उससे सभी लोग एकदम चक्कर खाने लगे, घूमने लगे, और उन्होंने अंततः क्या किया कि एक जो टीला था, माउंट था, एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके बॉटम में, उसके तली में जाकर हाथ पैर ऐसे फैलाकर पड़ गए और वे राख को देखने लगे. रॉक मतलब वो राख जो ड्रैगन के टाइप थी, सिमिलर टू द ड्रैगन. नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. A dry wind lazily picked up some flower heads and swirled them around. The air was thick with pollen and perfume. A stony grey nostril swished. Pollen means parag. Twist made a sudden sharp movement, quick movement. एक शुष्क हवा ने आराम पूर्वक से फूलों के कणों को उठाया और उन्हें चारों ओर घुमाया, चारों ओर से घुमाकर भंवर बना दिया. जैसे आप देखते हैं ना, बगीचे में ढेर सारी पत्तियां गिरी हुई और एक हवा चलती है और वो सारी पत्तियों को सिमेट कर एक जगह करके उसको भंवर के जैसे बना देती है. द एयर वॉज थिक विद पोलन एंड परफ्यूम. हवा जो थी वो पराग और उसकी सुगंध से परिपूर्ण थी, भरी हुई थी. हवा पराग और महक से, सुगंध से परिपूर्ण थी. स्टोनी ग्रे नॉस्ट्रिल ट्विज्ड. और स्टोनी ग्रे मतलब जो चट्टान की तरह भूरी नॉस्ट्रिल थी, नासिका थी, नाक थी. अचानक से क्या हुआ, उसमें एक हरकत हुई. मेड अ सडन शार्ट मूवमेंट. अचानक से उसमें एक हरकत हुई, झटके के साथ एक हरकत हुई. आई सॉ समथिंग क्राइड द यंगेस्ट बॉय. मैंने कुछ देखा. जो यंगेस्ट बॉय था, वो जो सारे बच्चे खेल रहे थे उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था, वो चिल्लाया. उसने कहा मुझे कुछ दिखा. दे स्टेयर्ड इंटेंटली एंड ईयर swirled like a periscope. The ground began to rumble. Look out, run. They stared. रंबल, उन्होंने गौर से देखा. दे स्टेयर्ड इंटेंटली, उन्होंने गौर से देखा कि एक कान जो उसका था ड्रैगन का, वो पेरिस्कोप की तरह से टर्न हुआ. पेरिस्कोप की तरह से उसका एक कान जो था वो टर्न हुआ. द ग्राउंड बिगेन टू रंबल. और जब जो धरती थी वो गड़गड़ाने लगी.
Twist means short jerky motion. The children scampered in all directions, shrieking and squealing, waving their arms in excitement. Scampered means ran away quickly. बच्चे जो हैं वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए, आवाज़ करते हुए अपने हाथों को, भुजाओं को उठाकर, उत्तेजित होकर, उत्तेजना से अपने बाहों को उठाकर इधर उधर तितर बितर हो गए, मतलब बिखर गए. द रम्बलिंग ग्रीव एंड ग्रीव. जो आवाज़ थी, जो गड़गड़ाहट थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी. ग्रीव एंड ग्रीव, वो बढ़ती जा रही थी, ऊंची होती जा रही थी. द ड्रैगन रेज्ड इट्स स्लीपी हेड. It sat like a dog. It stood up and stretched, arching its long, scaly back like a tabby cat. It blinked and looked around with big, kind, long-lashed eyes, and then its nostril twist again. The rumbling grew and grew. ये जो गड़गड़ाहट अचानक से हुई थी, अभी जो आपने पढ़ा है, तो वो अब बढ़ती गई. The dragon raised its sleepy head. ड्रैगन ने उठाया क्या? अपना जो सोया हुआ सर था वो उठाया. It sat like a dog. वह एक डॉग की तरह बैठा. It stood up and stretched, arching its long scaly back like a tabby cat. Tabby cat माने type of cat. A grey or brownish cat. एक tabby cat की तरह, scaly माने पर्दार, black, एक काली बिल्ली. जैसे आर्किंग माने होता है मेहराब बनाते हुए, जैसे गिलहरी होती है ना, गिलहरी की पीठ पर ऐसे जो एक धनुष की तरह, धनुष के आकार की तरह जो होती है मेहराब बनाते हुए, उस तरह से उसने अपने शरीर को खींचा, स्ट्रेच किया. जैसे हम बहुत देर तक पड़े रहते हैं तो हम अपने हाथ पाँव को ऐसे खींचते हैं, तो वो इट सैट लाइक ए डॉग. अब वो एक कुत्ते की तरह बैठा. इट स्टूड अप, या खड़ा हुआ, और स्ट्रेच्ड, आर्किंग इट्स लॉन्ग स्काइली बैक लाइक अ टैबी कैट. और उसने एक टैबी कैट की तरह अपने शरीर को खींचा. स्काइली बैक लाइक ए टैबी कैट. स्ट्रेच किया अपने बैक को, अपने बैक मीन्स पीठ को स्ट्रेच किया. इट ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड विद बिग काइंड लॉन्ग लैस्ड आइज. उसने ब्लिंक किया माने झपकाया. ब्लिंक माने झपकना, झपकाया. चारों तरफ देखा, अपनी बड़ी बड़ी, अपनी बिग और काइंड लॉन्ग लैस्ड माने ये लैसेज होती है ना आइस पे, ये जो लैस होते हैं ना, आई लैसेज आप लोग बोलते हैं ना, पलके. अपनी पलकों को चारों तरफ घुमाया. एंड देन इट्स नॉस्ट्रिल ट्विस्ट अगेन. और उसके बाद उसकी जो नासिका थी, जो नाक थी, ट्विस्ट अगेन. उसके बाद फिर से उसमें एक झटका आया, फिर से उसमें झटका आया, शार्ट जर्की मोशन. और उसने फिर अपने नाक को, ऐसे होता है ना जब अपनी नाक को उसने ट्विस्ट किया. द ओल्डर फोक वर अलर्टेड बाय द स्क्रीम्स एंड श्रिक्स. अलर्ट मीन्स अलर्ट हुए, चैतन्य हुए. जो ओल्डर फोक थे, चीख पुकार से, जो चीख पर, स्क्रीम्स एंड श्रिक्स, स्क्रीम माने चीखना, चीख और पुकार जो थी, उससे जो ग्रामवासी थे, जो वृद्ध लोग थे, वो सतर्क हो गए. जो वृद्ध लोग थे इस चीख पुकार से सतर्क हो गए. द लेडीज हेल्ड अप देयर लॉन्ग स्कर्ट टू रन एंड द मेन रोल्ड देयर स्लीव्स अप. जो महिलाएं थी, हेल्ड अप देयर, उन्होंने अपने लंबे स्कर्ट, जो अपने लंबे स्कर्ट पहने थे, उसको उन्होंने उठा लिया था. मतलब दौड़ने के लिए उन्होंने अपने कपड़े को थोड़ा ऊपर कर लिया था. और जो मेंस थे, जो पुरुष थे, उन्होंने अपनी स्लीव्स को, अपनी भुजाओं, अपनी जो स्लीव्स थी, स्लीव्स मीन्स जो आस्तीन जिसको हम बोलते हैं, जो अपनी स्लीव्स को उन्होंने ऐसे रोल्ड कर रखा था, मोड़ रखा था. अब वो भी एकदम तैयार थे दौड़ने के लिए, भागने के लिए. एंड सून द होल टाउन स्टूड टुगेदर इन ए टाइट हडल एट द फुट ऑफ द हिल, स्टेयरिंग अप एट द लार्ज बीस्ट विथ माउथ्स हेल्ड ओपन. अब पूरे जो होल टाउन था, पूरा जो कस्बा था, वे एक दूसरे को, हडल मीन्स होता है ठंड या डर की वजह से सब लोग एक दूसरे को पकड़ के जब बैठ जाते हैं, हडल, एक क्लोज ग्रुप. उन्होंने एक क्लोज ग्रुप बना लिया. कहाँ पे? एट द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी के तली में, पहाड़ी के तल पर उन्होंने मतलब एक दूसरे को टाइट होकर क्लोज ग्रुप बना लिया. और स्टेयरिंग अप एट द लार्ज बीस्ट विथ माउथ्स हेल्ड ओपन. और उसको क्या निहारने लगे, क्या देखने लगे? उस एक विशाल जानवर को जो अपना मुंह अब खोले हुए था. आ आ आ आ
द नॉइज इरप्टेड फ्रॉम द ड्रैगन, ये ड्रैगन जो है जिस उसने ये आवाज़ निकाली। द फैमिलीज ग्रिप्ड ईच अदर टाइटर एंड शट देयर आइज, जो फैमिली थी उसने एक दूसरे को बहुत ही कस करके पकड़ लिया और शट देयर आइज, अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। The sneeze blasted from the dragon like a rocket, throwing it back 50 paces, causing a whirlwind of dust and dirt. ड्रैगन से जो छींक थी, ड्रैगन जो एक आछू जो आवाज़ आई वो किस तरह की फूटी, रॉकेट की तरह फूटी। throwing it back 50 paces, causing a whirlwind of dust and dirt. ड्रैगन से जो छींक आई वो रॉकेट की तरह फूटती है, इसे ये वापस 50 कदम फेंक देती है, जिससे धूल और गंदगी का बाउंडर बढ़ जाता है। आछू, द सेकंड ब्लास्ट स्पिल्ड open the dry earth, sending explosions of soil and tree roots high into the sky like missiles and something else too. जो सेकंड ब्लास्ट हुआ है, दूसरा धमाका जो था वो शुष्क पृथ्वी को ऐसे खोलता है, पृथ्वी और पेड़ की जड़ों के विस्फोटों को आकाश में मिसाइलों की तरह उच्च स्तर पर भेजता है। जो ये जो आवाज़ होती है एक्सप्लोजन, एक धमाका होता है सॉइल में, पेड़ों पर और उसकी रूट्स पर, और ये मिसाइल की तरह इन चीज़ों को ऐसे ऊपर फेंकता है। और भी द पीपल हर्ड द साउंड बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट एट फर्स्ट, लोगों ने इस आवाज़ को सुन सके लेकिन कोई भी इसको समझ नहीं पाया, पहली बार में इसको कोई पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया कि कैसी आवाज़ है। एट देयर आइज वाइड एंड इन वंडर, देयर स्माइल्स टर्न्ड इनटू ग्रिन्स एंड देन याहू एंड हुर्रे, उनकी आंखें जो थी वो फैल गईं, आश्चर्य से क्या हुआ, फैल गईं, और उनकी जो मुस्कान थी वो ठहाकों में बदल गई। और उसके बाद उन्होंने बोला याहू हुर्रे, जैसे हम बोलते हैं ना कोई जीत हमको मिलती है, कोई हमारे मन की बात होती है, हम कहते हैं हुर्रे याहू, तो बच्चों की जो मुस्कान थी वो अब ठहाकों में बदल गई और उन्होंने कहा याहू हुर्रे। वाटर, कोल्ड क्लियर स्प्रिंग वाटर posed, then trickled, then roared out of the hole down the hillside and along the valley flew. देखिए, पानी ठंडा साफ झरने का पानी, रिसा, posed मीन्स रिसना, trickled टपका, टप टप करके गिरना, और फिर छेद से बाहर पहाड़ी की तरफ घाटी की ओर। The torrent knocked over a farmer's haystack, but he didn't care. The river carried away the school teacher's bike set, but she didn't care a whoop. When the flood sent pools of water out towards the golf course, filling up 16 of the 19 holes, the men just hooted and whistled. The torrent knocked over a farmer's haystack. जो बौछार थी वो जो किसान की haystack, जो उनका घास का गट्ठर था वो उससे टकराई, लेकिन किसान को कोई इस बात का कोई चिंता नहीं थी। रिवर कैरिड अवे द स्कूल टीचर का जो बाइक सेट था उसको भी वो आगे अपने साथ लेकर गई, लेकिन स्कूल टीचर जो थी उनको भी उसका कोई असर नहीं पड़ा। बट सी डिड नॉट केयर, लेकिन उन्होंने कुछ भी चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, कोई भी ललकारना या हूप नहीं भरा। व्हेन द फ्लड सेंट पूल्स ऑफ वाटर out towards the golf course filling up 16 of the 19 holes, the men just hooted and whistled. जब गोल्फ कोर्स की ओर जब जो पानी था वो गोल्फ कोर्स की ओर बढ़ा, पानी का तालाब लेके जब पानी का तालाब गोल्फ कोर्स की तरफ बढ़ा तो 19 में से जो 15 छिद्र जो थे उसके वो भर गए। तब पुरुषों ने सीटी बजाकर हूटिंग की। When the flood sent pools of water out towards the golf course, filling up 16 of the 19 holes, the men just hooted and whistled. जब फ्लड जो था, जो पानी की बाढ़ थी या बौछार थी, उसने उसका जो पानी का जो पुल था वो गोल्फ कोर्स की तरफ भेजा, तो उसके जो थे वो 19 में से 16 उसके होल्स जब भर गए, तब पुरुषों ने क्या किया, हूटेड किया, हूटिंग सीटी बजाकर हूटिंग किया। कोई प्रोग्राम देखते हैं आप लोग, सीटी बजाते हैं ना, तालियां बजाते हैं, उसी तरह पुरुषों ने खुशी जताई, हूटिंग की।
सीटी बजाकर हुटिंग किया उन्होंने। What used to be a dirty brown dust bowl now gleamed and glistened in the sunlight, sending playful waves and ripples across the lake. What used to be a dirty brown dust bowl? ये जो गंदा भूरा जो डस्ट का जो बाउल था उसकी वो अब क्या हुआ, चमचमाने लगा, जगमगाने लगा सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी में ये जो धूल का बवंडर बना हुआ था, धूल जो पत्तियाँ ड्रैगन की चारों तरफ बच्चों ने फ्लावर्स पत्तियाँ सजाया था, पेटल सजाया था, वो अचानक से तेज़ हवा बही और बाउंडर बना और उसी में वो जो ड्रैगन था उसने धरती को खरोचा और उसमें छेद किया, पानी आया। उसके बाद ये जो बाउंडर था धूल का, मिट्टी का, गंदगी का, वो अचानक से क्या हुआ, जगमगाने लगा, चमकने लगा सूरज की रोशनी में। सेंडिंग प्लेफुल वेव्स एंड रिपल्स अक्रॉस द लेक। और उसके बाद झील के पार लहरों का क्रमिक उतार चढ़ाव। सेंडिंग ए प्लेफुल वेव्स, एक जो प्लेफुल चंचल लहरें जो थीं वो झील के आर पार, चंचल लहरें जो थीं वो झील के आर पार तक दिखाई देने लगी। ऐसा होता ना, साइड द ड्रैगन स्लीपी। ड्रैगन ने कहा, ड्रैगन ने एक सांस ली, ड्रैगन को नींद से जगाया। नाउ दैट आई एम अवेक, अब मैं जागा हूँ। ही लम्बर्ड फॉरवर्ड एंड सरप्राइजिंग ग्रेस एंड स्टाइल। लम्बर्ड मीन्स होता है मूव्ड स्लोली एंड हैवीली, बहुत ही ग्रेसफुली, स्टाइल से उसने अपने को आगे बढ़ाया। एंड disappeared into the cool dark water with a small wave of a claw and a flick of his tail. अपनी पूंछ की एक छोटी सी लहर के साथ वो शांत गहरे पानी में गायब हो गया। They never saw him again. उन्होंने वे उसको फिर से नहीं देखे। जब वो उस पानी में गायब हो गया, जो गहरा पानी था, अपने जो पूंछ थी उसको एक झटके के साथ उस गहरे पानी में अपने को डिसअपियर्ड कर लिया। फिर उन लोगों ने उसको कभी नहीं देखा। एवरी ईयर टू मार्क द ओकेजन द पीपल वुड ब्रिंग गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड अरेंज देम इन अ बिग सर्कल। द चिल्ड्रन वुड हैव द डे ऑफ, फॉर इट was known as the water dragon day. They would wear dragon mask and skip, clap and sing. प्रत्येक साल इस ओकेजन में त्यौहार, इसको मार्क करने के लिए, इसको याद करने के लिए लोग खूब ढेर सारे गार्लैंड, माला, फूलों की माला अरेंज करते हैं। उसको एक बिग सर्कल में, एक बड़े गोलाकार में उसको अरेंज करते हैं, सजाते हैं। चिल्ड्रन वुड हैव द डे ऑफ, उस दिन बच्चों की का जो होता है वो ऑफ डे होता है, मतलब वो स्कूल नहीं जाते हैं। फॉर इट वाज नोन एज द वाटर ड्रैगन डे, और वो जाना जाता है किस नाम से, जैसे दशहरा, दीपावली, तो वो ओकेज़न किस नाम से बच्चे मनाते हैं, वाटर ड्रैगन डे। दे वुड वियर ड्रैगन मास्क, वे ड्रैगन का मास्क पहनते हैं, जैसे कुछ बच्चे लायन का पहनते हैं, कुछ किंग का पहनते हैं, कुछ मंत्री का, कुछ साधु का। उसी तरह सारे बच्चे ड्रैगन का मास्क लगाते हैं। स्किप, क्लैप एंड सिंग, और कूदते हैं, ताली बजाते हैं और गाते हैं। द ड्रैगन हेल्प अस एज वी सेड ही वुड डू, हुर्रे फॉर द ड्रैगन, याहू याहू याहू। ड्रैगन हेल्प अस, ड्रैगन ने हमारी मदद की। एज वी सेड ही वुड, जैसा हमने कहा था कि वह करेगा। हुर्रे फॉर द ड्रैगन, ड्रैगन के लिए हुर्रे, याहू। चिल्ड्रन, your completed, your 6th lesson completed. Thank you. I hope you understood this lesson very